ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہمارے والدین ہمیں مارتے ہیں، ہمارا گونگا بہرا ہونا انہیں بہت کھٹکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بیکار ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، طاقتور نہیں، کمزور ہیں، وہ بالکل گونگے اور بہرے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں، وہ آواز نہیں اٹھا پاتے کیونکہ وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو اس طرح سے سن نہیں پاتے اور اس طرح سے اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ جو فتح سے اتنی محبت کرتے ہیں، خبردار رہیں کہ فلسطینیوں کی شکست عرب کی نفسیات کے لیے خمیر کا کام کرے گی۔ آپ ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، میں دہراتی ہوں، آپ ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، میں ان کے مرنے کی کھڑکھڑاہٹ سن سکتی ہوں۔ 10 لاکھ پرندے، ایک چھوٹا سا ناولٹ جو بیروت میں ہونے والی خانہ جنگی کے حوالے سے ہے۔ ناول کا ٹائٹل جتنا دلچسپ ہے، سرورق جتنا عمدہ ہے، اسے دیکھ کر ایک ایسے کرب کا احساس بھی ہوتا ہے جس سے ہمیں بیروت کی خانہ جنگی اور اس خانہ جنگی میں ہونے والے حادثات اور وہ واقعات اور وہ تلخ تمام چیزیں، سانحات، ان کا ایک عکس جو ہے یا ایک علامتی شکل میں یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ قاری نام سے ہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ 10 لاکھ پرندے، آخر کیوں، آخر کیسے اور آخر کہاں؟ تو کہانی کیا ہے، کس کی کہانی ہے؟ کہانی ہے ست میری روز کی، اور ست میری روز کے اغوا اور اس کے قتل کا ایک حقیقی واقعہ جس کو ایتل عدنان نے اس چھوٹے سے ناولٹ کی شکل میں ڈھالا ہے، جو پڑھنے میں بہت دردناک بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، اور دنیا کی اس خانہ جنگی کی عکاسی کرتا ہے جس کی وجہ سے کئی انسان یا لاکھوں انسان جس صدمے سے، سانحے سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، بدامنی کا وہ دور کہ جس میں لوگ جینے کو ترستے ہیں، زندگی مانگتے ہیں، لیکن انہیں زندگی ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ تو ایتل عدنان کون ہے؟ ایتل عدنان بیروت میں پیدا ہوئی، لبنان میں پلی بڑھی، اور امریکہ میں پھر انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، فلسفے کی تعلیم خاص طور پر انہوں نے امریکہ میں حاصل کی۔ 1978 میں یہ ناول پہلی بار لکھا گیا فرانسیسی زبان میں، بعد میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اردو میں اس کو تنویر انجم صاحبہ نے، جو کہ بڑی معروف اور بڑی مشہور شاعرہ ہیں ہماری، انہوں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا اور اس ناولٹ کو عکس پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے۔ تو ناول کیا ہے، ناول کی کہانی کیا ہے، ست میری روز کون تھی، اور 10 لاکھ پرندوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ناول کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کا عنوان رکھا گیا ہے 10 لاکھ پرندے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیروت کی خانہ جنگی کا دور ہے، اور یہاں پر ایک ایسا گروہ ہے جو کہ ایک فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس فلم میں وہ اسی زیادتی یا اس ظلم اور جبر کو دکھانا چاہتے ہیں جو روا رکھا گیا ہے۔ تھوڑا سا اس ناول کا پس منظر ہمیں سمجھنا ہوگا، ایک منظرنامہ ہمیں اس وقت کے بیروت کا دیکھنا ہوگا کہ جب بیروت میں خانہ جنگی ہے اور یہاں پر عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے 2 گروہ ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں، اور دونوں ہی خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کی گردنیں کاٹتے وقت قطعاً یہ نہیں سوچتا کہ جسے وہ مار رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور ان کے ہاتھ جن کے خون سے رنگے جا رہے ہیں وہ انسان ہیں، اور خود وہ مارنے والے جو اپنے آپ کو حق کی خاطر یا اپنے آپ کو سچ کی خاطر اس تمام غیر انسانی فعل سے گزار رہے ہیں، وہ اس وقت سماج میں کہاں کھڑے ہیں یا ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ناول میں ہم ست میری روز کا کردار دیکھتے ہیں۔ اب جب ناول شروع ہوتا ہے اور بیروت کی خانہ جنگی ہے اور سب ایک دوسرے سے اونچا اونچا بول رہے ہیں اور جنگ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ جو ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور سب ایک دوسرے سے ہنگامے میں ہیں اور گولیاں چل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور پھر یہ اس سارے منظر کو اپنی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم فلمائیں۔ اب یہاں پر شکاری ہیں اور جس میں عرب کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ظاہر ہے جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک اگر کسی خون خرابے میں شامل ہو جائیں تو وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں اس پر بولنے بھی نہیں دیتے اور آواز بھی نہیں اٹھانے دیتے، تو وہ کتنا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ ناول میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قاتلوں کا گروہ ہے وہ پرندوں کا شکار کرنے آیا ہے۔ اب یہاں پر اس خاتون کی خواہش ہے کہ کاش وہ آسمان پہ 10 لاکھ پرندے چھوڑ دے اور یہ لوگ انہی پرندوں کو مارتے رہیں اور انسانوں کے قتل سے باز آ جائیں۔ انسانوں کا خون بھی ایسے بہایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ انسان نہ ہوں بلکہ جانور ہوں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں، اور جو پچھلی عمارت ہے جہاں 3 مزدور کام کر رہے تھے جن کو انہوں نے فلمانا تھا، اور جب وہ 3 مر جاتے ہیں، انہیں گولی لگ جاتی ہے، تو ایک بے حسی یا ایک سفاکیت ہے
कि जब उन्हें बताया जाता है कि वो 3 मजदूर मारे गए तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इन्हें भी फिल्माएंगे और हम इन्हें भी दिखाएंगे, अरब ममालिक में नहीं दिखाएंगे लेकिन दुनिया को दिखाएंगे और इससे हम पैसा बनाएंगे। तो शुरू में 10 लाख परिंदे एक अलामती अंदाज में बताया गया है कि जिस तरह जितने इंसान मर रहे हैं उसमें कहीं इनके बस में हो तो वो 10 लाख परिंदे आसमान पर छोड़ दें और वो इंसानों के बजाय उनका शिकार कर लें। तो नॉवेल के दूसरे हिस्से में हम सित मेरी रोज को देखते हैं, जो कि दूसरा ज़माना के उन्वान से दिया गया है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सित मेरी रोज कौन है। वो एक ईसाई खातून है जो गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में जाती है, उन्हें पढ़ाती है। ये सब एक हकीकी कहानी है और उस हकीकी कहानी को एतल अदनान ने जिस तरीके से एक नॉवेलेट की शक्ल में ढाला है, नॉवेल के बहुत से हिस्से बड़े दर्दनाक हैं। अब कुछ हिस्से जैसे देखिए, मेरी आंखें उन पौधों की तरह हैं जो दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। मेरा दिल चाहने लगा है 2 रॉकेट मेरे सर में से गुजर जाएं, मुझे सही सालम छोड़कर। यही इसका मतलब है। इसी तरीके से एक और जगह वो बताती है कि मुसलमानों के इलाके ज्यादा बेतरतीब और ज्यादा रंगीन हैं। यहाँ कूड़े के डब्बे भी बड़े और ज्यादा हैं और नुमायां हैं। यहाँ आंखों में बहादुरी की नुमाइश कम और गमजदा कनात ज्यादा है। होंठों के गिर्द एक सिलवट के अलावा अब कोई हेबत बाकी नहीं है। मोर्चों की बाकियात ज्यादा नुमायां हैं और ज्यादा बरमहल भी, और एक खास किस्म की लापरवाही आजाद की हरकत चेहरों और फिजा में अपना तासुर छोड़ रही है। यानी मरने और मारने वाले दोनों ही एक खास किस्म की जहनी कैफियत से गुजर रहे हैं और उस कर्ब का बयान यहाँ पर नजर आता है। नॉवेल का दूसरा हिस्सा जहाँ हमें सित मेरी रोज का वाकया नजर आता है वो दूसरा जमाना पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सित मेरी रोज जो एक ऐसी खातून है जो कबाइल, मसलक, मजहब, कौमी शनाख्तें, उन सब की कैद, उन सब की हदबंदियों को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहती है, जो सिर्फ ये चाहती है कि दुनिया में अमन हो और जितने भी लोग हैं, चाहे वो फलस्तीनी हैं, लबनानी हैं, जो भी लोग हैं जहाँ पर भी हैं, वो सब अमन से रहें, खुशी से रहें। अब वो खातून जो कि गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में पढ़ाती है और वहाँ पर उसको वो लोग टकरा जाते हैं या वो लोग आ जाते हैं और वो बड़े हैरान हैं कि ये तो हम ही में से है और ये ईसाई होते हुए भी ये मुसलमानों की मदद क्यों कर रही है। अब उन बच्चों का अहवाल जो गूंगे बहरे हैं, ये भी एक अलामती शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं कि दुनिया के वो ममालिक जो बेबस हैं, बेकस हैं, ताकतवर नहीं, कमज़ोर हैं, वो बिल्कुल गूंगे और बहरे हैं। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो मजालिम हो रहे हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि वो बहरे हैं और गूंगे हैं। तो वो अपने साथ होने वाले जुल्म को उस तरह से सुन नहीं पाते और उस तरह से उसका इजहार नहीं कर पाते। हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, हमारे वालिदैन हमें मारते हैं, हमारा गूंगा बहरा होना उन्हें बहुत खटकता है। वो कहते हैं हम बेकार हैं, हमारी वजह से हमारी बहनों की अच्छी शादियां नहीं हुई। चुनाचे वो हमें स्कूल में भेज देते हैं और सिर्फ मिस मैरी रोज ही हैं जो हमसे मोहब्बत करती हैं। हम ये बात जानते हैं क्योंकि वो इतनी साबिर है कि क्लास के ख़त्म होने पर भी वो दूसरे असातिज़ा की तरह बाहर नहीं निकल भागती। वो हमें अपने दफ्तराने देती हैं, जब भी हमें कोई बात होती है वो हमें मारती नहीं बल्कि प्यार से हमसे बात करती हैं। तो हमें सित मेरी रोज का किरदार आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि वो कितना हलीम है, कितना नरम तबाह है और किस तरीके से उनके साथ अच्छा सलूक करता है। अब यहाँ पर उसी खातून की नज़र से फिर जब हम उस सारे मंजरनामे को देखते हैं खाना जंगी के जिसमें हमें साम्राज्यत और उसके मफादात जो मजहब के नाम पर है वो बड़े खुलकर नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा चीज़ें पहले ही बेनकाब होना शुरू हो गई। अब इसमें देर हो चुकी है कि आप माजी के खौल में रेंग सकें। मुर्दा फलस्तीनियों के खून में मिला हुआ इतना ही लबनानियों का खून है जो उनके लिए और उनके साथ मारे गए। पहली दफा अरबों की तारीख में एक गिरोह ने दूसरे गिरोह के लिए जान दी है। आप मुल्क के आधे हिस्से की नुमाइंदगी नहीं करते जिसमें इतने ही ईसाई हैं जितने कि मुसलमान, जो फलस्तीनियों के लिए और उनके साथ लड़ रहे हैं। मैं अकेली नहीं जो ये सब कर रही हूँ। यानी ये वो मुकालमात हैं जो उसके उन लोगों के साथ हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो उसको मारने वाले लोग हैं या जो गासिब गिरोह है वो है कि जिसका नुमाइंदा वो शख्स है जो किसी ज़माने में सित मेरी रोज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा है। अब वो उसे कहती है कि आप जो फतह से इतनी मोहब्बत करते हैं, खबरदार रहें कि फ़लस्तीनियों की शिकस्त अरब की नफ्सियात के लिए खमीर का काम करेगी। आप उनके गले काट रहे हैं, मैं दोहराती हूँ, आप उनके गले काट रहे हैं। मैं उनके मरने की खड़खड़ाहट सुन सकती हूँ। उनका खून आपके दहानों को भरता है, लेकिन ये चीज़ें हरकत में हैं। वो रुबात में हैं, अल्जीरिया में हैं, कैरोन में हैं, लीबिया के त्रिपोली में हैं, फ्योम में हैं, दमिश्क में हैं, और उससे बहुत आगे हर जगह हरकत में हैं। और वो लोगों से नंगे पांव अपने हकूक का दावा करने पहुंच रहे हैं। अब
वो लोग सितमेरी रोज से चाहते हुए भी नफरत नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो ईसाई है, और उन्हें इस बात की झुंझलाहट भी है कि ये हम ही में से होते हुए मुसलमानों का साथ क्यों दे रही है। तो उनका कहना है कि अगर तुम मुसलमान होती मेरी रोज तो कोई मसला ना होता, उन्होंने पहले सड़क के किनारे ही तुम्हें गोली मार दी होती, लेकिन तुम ईसाई हो और अब भी हम तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो हमें खुशी होगी। बार बार उनकी कोशिश होती है कि वो उसके साथ मुकालमा करें और किसी ऐसे मकाम पर उसको ले आएं कि जहां पर वो उन्हें मुखबरी कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हालात ये हो जाते हैं कि उसके बदले वो उन लोगों से यानी मुसलमानों से मुतालबा करते हैं कि उनके कुछ अफराद छोड़ दिए जाएं, और वो इस बात पर हामी भी भर लेते हैं क्योंकि उनके लिए सितमेरी रोज बहुत कीमती है। ये वो औरत है जो अमन चाहती है, ये वो औरत है जो उन सब के लिए आसानी या उन सब के लिए एक अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखती है, जो जंग नहीं चाहती। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जाहिर है वो अपनी उन तमाम चीज़ों से तंग आ जाते हैं, वो उसको कायल नहीं कर पाते और वो उसको किसी भी तरह जंग के हवाले से कायल नहीं कर पाते कि जंग ज़रूरी है। और फिर वो वक्त आता है कि जब उसे एहसास होता है सितमेरी रोज को कि बस अब उसका वक्त पूरा होने वाला है। आज सुबह इतनी सफ़ेद रोशनी क्यों है, एक खराश का सा दर्द मेरे गले को खुरच रहा है, तो मुझसे क्या चाहते हो? कोई कह सकता है कि इस शहर ने खुद को मार लिया ताकि मौत की लामहदूदियत में दाखिल होने से पहले मैं जिंदगी की लामहदूदियत में खोता लगा सकूं। तो किस कदर गहरे मुकालमात हैं कि जिनमें एक शख्स अपने बातिन का सफ़र भी करता है, यानी वो खातून अपने बातिन का सफ़र भी करती है और ज़ाहिर की दुनिया में भी मौजूद होती है। मैंने दुआओं को अपनी निजात के लिए बुलाया मगर वो नहीं आई। नफरत ने मुझे अपने शर में जकड़ लिया, मेरे सीने के पट्टे सुकड़ गए और ये सख्ती सीधी एक फौलाद की तरह मेरी गर्दन की हड्डी तक पहुंच गई। कई बार उस रात के दौरान में जो कभी खत्म होती मालूम नहीं होती, मेरी सांस घुट गई। मैं एक सर्द पसीने में ऐंठ रही थी और चीखने से खौफजदा, और अपनी आंखों में और वो आंखें जो दुख रही थी, जो मुझे छोड़ देना चाहती थी। रात की ज़खामत को एक चाकू से काटा जा सकता था। मेरे थूक ने निगलने से इनकार कर दिया और मैं थकन से चूर थी। तो वो खातून कैसे लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती है और फिर उसे उसके बच्चों के ही सामने कत्ल कर दिया जाता है या उसे फांसी दे दी जाती है, वो हिस्सा नॉवल का बड़ा ही तल्ख और बड़ा ही तकलीफ दे हिस्सा है। तो खैर उसकी कुछ बातें हैं जो वो बताती जाती है। बकौल उसके इंसान फितरत के रास्ते में हायल सिर्फ एक लाल बेग है। ये नस्वानी अफरियत जो हमारे रहमो करम पर है, हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत करती है, कितनी अहमक है। अब ये वो लोग उसके बारे में जो सोचते हैं, जो उसको कत्ल करने लगे हैं, मुझे उसे एक खटमल की तरह इसी लम्हे मसल देना चाहिए था जब हमने उसे पकड़ा था। हम उससे बातें किए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, क्यों और किस लिए? क्या भेड़िया भेड़ को खाने से पहले उससे इजाजत मांगता है? ये भेड़िए की हैसियत और उसका हक है। तो एक जालिम को एक मजलूम का शिकार करने के लिए किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और फिर नॉवल का आखिरी हिस्सा कि जब उसको फांसी दे दी जाती है और उसी यसू मसीह के सामने, जिसको समझते हैं कि ये अमन का पैगाम लेकर आया है, आप इसे पसंद करें ना करें, फांसी हमेशा एक जश्न होती है। ये लामतों का रक्स है जिन्हें मौत इस्तेहकाम बख्शती है। ये बेवकूफ़ खामोशी की तेज़ परवास है। ये हमारे दरमियान मुकम्मल तारीकी का धमाका है। इस स्याह ज़ियाफ़त में सिवाय रक्स के कोई क्या कर सकता है? तो फिर क्लास में जब तमाम गूंगे बहरे बच्चे सितमेरी रोज के सामने बैठे हैं, तो तभी ये लोग उसको मार डालते हैं और यूं हक गोई की, आज़ादी इजहार की और अमन की बात करने वाली एक जबान का गला घोंट दिया जाता है, एक आवाज़ खामोश कर दी जाती है। अमन के हवाले से और जंग की तकलीफ दे सूरत हाल को समझने के हवाले से, बैरूत की खाना जंगी के हवाले से और उस सियासी मंजरनामे को समझने के हवाले से ये बड़ा शानदार नावल है और बेहद मुख्तसर है। तो इसे ज़रूर पढ़िए। बहुत शुक्रिया।